Assalamu alaikum. The topic for today's session is agricultural transformation and rural development. The importance of this particular topic is to explain or to emphasize that how agricultural transformation or agricultural sectors development can play a significant role in fastening or explaining the variations or the growth process in an economy, particularly if the concerned economy is an agriculture based. So we are going to look at different dimensions that are associated with the agricultural transformation or the agricultural sector's development or transformation from being a subsistence agriculture to a modern kind of an agricultural sector where latest technologies and technological innovations are being used. So in particular, we are going to discuss a few questions in detail, and these questions include how to increase the per capita agricultural output and the productivity of whatever is being produced in the agricultural sector. Then we are going to discuss what is the role of government and how this, by making this role of government more effective, the overall output of agriculture sector can be enhanced considerably. And the third thing we are going to discuss is how to transform the traditional low productivity agriculture into a high productivity commercial agriculture. So these are the major three things we are going to discuss in this session. And before I start off with the formal discussion point by point, it is important to understand the significance or the imperative of agricultural progress and rural development in an economy, and we are assuming that the economies we will be talking about in particular in this context are those जो कि developed नहीं हैं. So as long as the data is concerned, just to emphasize the significance or the important role played by the agricultural sector in the development of an economy, we need to look at the various facts and figures in order to understand the relative significance of this particular sector's growth. So in 2010, the number of poor people is larger than 3.1 billion in the rural areas. This is the number of people that are associated with various types of agricultural activities, and they are situated in the rural areas. And out of these 3.1 billion people who are situated in the rural areas, it has been observed that almost a quarter of them is living in an extreme poverty. And if you can recall, we discussed what is meant by extreme poverty. By extreme poverty, we mean that these are the people who are unable to even satisfy their basic needs, and they fall below the poverty line. And the two criteria which we frequently use of the poverty line are $1.25 a day and $2 a day. That means that if you are unable to satisfy the basic needs, and for that the necessary money which you have to have is $2 per day, and if there is an individual who is unable to at least make up money that is lesser than $2 a day, then the person is said to be living in an extreme poverty situation. So we have just discussed that when we observe the overall distribution of people living in the urban areas and the rural areas, we observe that there is a large majority of people in the developing countries that are situated and based in the rural areas. According to 2010's estimates, they are more than 3.1 billion, and out of these, almost a quarter is sitting below the poverty line. So this indicates that in the past, in particular, the governments have emphasized a lot on the development of the industrial sector at the cost of the agricultural sector. So even in Pakistan, if you look back into the history, पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद अगर हम देखें जो भी पॉलिसीज़ बनाए गए थे पाकिस्तान को क्विकली फास्टली डेवलप करने के लिए, उसमें मेजर एम्फेसिस वाज लेड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंस्टेड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, और वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किए जा सकते थे, गवर्नमेंट ने कोशिश की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्रॉम 1950s ऑनवर्ड्स ख़ास तौर पे हम देखते हैं दैट अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट
on the development of the industrial sector in Pakistan, जो कि उस वक्त ना होने के बराबर थी. And another aspect we observe is that this major focus of investment and giving facilities to the investor class and the industrialists at that time in Pakistan was done primarily at the cost of agriculture sector. और उसकी वजह से हम देखते हैं कि उस जो शुरू की फेज है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है या पर एकड़ यील्ड है, दैट वाज वेरी लो, एंड द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दैट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी, जो कुछ भी वो कमा सकते थे, वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की कैटेगरी में फॉल करता है. एंड दिस कैन ऑल्सो बी सीन दैट हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें जो मेजॉरिटी उस जमाने की एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, वो सारी की सारी प्राइमरी गुड्स के ऊपर बेस्ड थी जो कि अनप्रोसेस्ड हैं और उनके ऊपर कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया गया था. सो जो भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड. एंड दिस इज अगेन वी सॉ दैट देयर इज a greater tilt towards the development of the industrial sector even in Pakistan. So the same strategy was being followed during this time period of 1950s all across the globe, particularly among all the developing countries. So at that time ये सोचा गया कि probably किसी भी इकोनॉमी को अगर आप तेजी से तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा तेजी से ग्रो करना चाहिए. और जो आर्ग्यूमेंट पेश की गई दैट वाज दैट आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट लेवल. सो जो आपके मासेस अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर यूटिलाइज लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर में बैठी हुई या रूरल एरियाज के अंदर सिचुएट करती है, आप उसको उठा के अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेके आके उनको कोई किसी किस्म के स्किल्स देके आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं. और इस तरह से आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट लेवल है या पर कैपिटा इनकम है दैट कैन गो अप. So based upon this argument, a lot of emphasis was laid down on the overall development of the industrial sector at that time throughout the world. This is what we observe not only in Pakistan बल्कि हम सारी दुनिया में जहाँ जहाँ कहीं भी आपको developing countries देखने को मिलेंगे उस वक्त, उसमें primarily the focus was on the development of the industrial sector alone, and the emphasis was focused upon industrial sector's growth, और agriculture sector को kind of उस वक्त ignore किया गया. But later on, it has been established by a number of different development economists and theorists कि आप चूँकि अगर हम agriculture sector को analyze करें, उसके जो भी आप output लेते हैं, तो that is basically the agriculture sector is the major source of food for all the people, whether you are living in a developed nation or a developing country. हर हालत में आप agriculture sector की output के ऊपर dependent है, because वो आपको सबसे पहली बात ये कि वो आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है. सो इट वाज लेटर ऑन एस्टैब्लिश्ड दैट इफ यू वांट टू डेवलप एन इकोनॉमी इन द रियल टर्म्स, देन आप एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को इग्नोर नहीं कर सकते, या आप सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के ऊपर एम्फसाइज नहीं कर सकते. आपको साथ ही में इक्वली एम्फेसिस देना है या इक्वल सिग्निफिकेंस देनी है एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी. सो द फोकस वाज चेंज्ड, दैट द प्राइमरी focus was initially laid down only on the development of the industrial sector, which was later on diverted towards the significance or towards the development of the agriculture sector also. So we see some sort of transitions and changes in terms of the agricultural sectors. This is what I'm going to discuss with you in detail. So अभी हम कोई भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अगर ऑब्जर्व करें आज के ज़माने की, तो हम ये देखते हैं कि उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस नहीं है. अभी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एनालिस्ट हैं या स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो फोकस करते हैं साइमल्टेनियसली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज द एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज दैट जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करते हैं तो उसके ग्रोथ हैज़ अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ एज वेल, बिकॉज इफ you are able to, if you are linked up with agriculture sector और आपके पास कोई extra surplus आपने money generate की है, you can utilize that money for investment purpose in order to set up different types of business ventures. So that is there. Plus आप जो extra money earn कर सकते हैं agriculture sector के develop करने से,
से आप उससे अपने आप को फर्दर स्किल्स के टर्म्स में बेटर कर सकते हैं, आपका ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव कर सकता है, या आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं which may become later on entrepreneurs, or they can participate in the development of the industrial sector, or while being in the rural areas, if you like become a successful agriculturist, तो आप इस तरह के कोई tools या techniques या mechanized किस्म के चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए डिमांड क्रिएट होगा, और नेचुरली द डिमांड विल बी क्रिएटेड, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो चीज़ें, वो पुर्जे, वो टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी जो आपको चाहिए. सो इन अ वे the two sectors grow simultaneously side by side, और वो एक दूसरे को complement करते हैं. प्लस अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करते हैं या उसके ऊपर फोकस देते हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर, या वैसे आप जो आप उसके स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसका ओवरऑल फार्मर का जो इकोनॉमिक लेवल है, तो उससे आप ये भी देखते हैं कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द रूरल एरियाज, दे ऑल्सो गो अप, एंड दैट contributes in accelerating the overall growth of the output. Plus, we also see that because of this development in the agriculture sector, the domestic demand also goes up for the agricultural output. कि आपकी जो per capita income है, people who are situated in the rural areas or the people who are situated in the urban areas, so if the overall per capita income goes up and the agriculture sector is contributing significantly, या उसका total output बढ़ जाता है, तो उससे हम देखते हैं कि हमारा जो derived demand hai, that also goes up. So in addition to that, if the government or the policy makers emphasize on the non-agricultural, rural, labor-intensive development activities, अगर वो rural area में इस किस्म के activities को facilitate करना शुरू कर दें, जो कि directly agriculture से linked up नहीं है, मगर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप कोई ऐसे tools या equipments बनाना शुरू कर देते हैं जो कि in इवेंचुअली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, या आप कोई स्कूल्स वगैरह या कोई वर्कशॉप्स या कोई ट्रैक्टर को ठीक करने के वर्कशॉप्स या कुछ इस तरह की चीज़ें, या ट्यूबवेल्स जो कि हमें पता है कि मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, उनको ठीक करने की कोई वर्कशॉप्स या कोई ऐसे मैन पावर के स्किल देना शुरू कर दें जो कि इस तरह की सर्विसेज को रेंडर कर सकते हैं वाइल बीइंग इन द रूरल एरिया और इन द विलेजेस, जहाँ ये सारे के सारे डिफरेंट तरह के मशीन्स इस्तेमाल हो रहे हैं. सो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सकता है. सो अगर गवर्नमेंट फोकस करती है अपने पॉलिसीज़ में कि वो नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल डेवलपमेंट को इन्हांस करे, सो उससे ऑटोमेटिकली ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपेयर होंगे उस रूरल एरिया के अंदर जो कि एक तो ना सिर्फ आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर रहे हैं, आपके इनकम को बढ़ा रहे हैं वाइल बीइंग इन द रूरल एरिया, बट एट द सेम टाइम दे पुट अ स्टॉप और दे मे स्लो डाउन जो अर्बनाइजेशन का इफेक्ट है या रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का जो इफेक्ट है, दैट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस कंसिडरेबली इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द people who are based in the rural areas, and particularly those activities can be emphasized जो कि non agricultural based हैं. Or in addition to this, we also observe that when we focus upon the development of these kinds of activities, so we know that if we are having surplus labor that is associated with the agriculture sector, तो हमने देखा था ल्यूइस के थ्योरी में भी कि जो आपका marginal product of labor है of all those labor force that is associated with the agriculture sector, वो diminish करता जाता है और eventually a stage comes जब MPL आपका zero हो जाता है. So अगर आप non agriculture based rural sector में कोई enterprises establish करने जा रहे हैं, कोई ऐसी की opportunities लोगों को देने जा रहे हैं so that they can divert themselves from the agricultural activities towards the non-agricultural activities while being in the rural area, so that can also help us in coming out of that situation जहां हम देख रहे थे कि surplus labor बैठी हुई थी और marginal productivity of labor diminishing marginal returns की वजह से zero या closer to zero है because of the surplus labor that is associated with the agriculture sector. So ये सारे factors हैं जो कि हमें help करते हैं
in utilizing the human resource in a better way, and at the same time to achieve the goals of fastening the pace of growth of a developing economy. So the next thing which I'm going to discuss is the past progress and the current challenges as long as the agricultural sector pertaining to the developing countries is concerned. So हम देखेंगे कि over the last so many years जो हमारा agricultural growth है वो किस तरह से हमें किस तरह के trends दिखाता है और अभी इस वक्त हमें कौन से global basic challenges का सामना है. So initially if you look at the different types of variables जो कि आपको agricultural output के बारे में information देते हैं, so we observe that the overall share of agriculture sector in GDP globally that has gone down, and another important thing which we observe is that the people that are associated with the agriculture sector, that is also going down from the last so many years. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो ओवर टाइम ग्लोबली अगर हम ये ट्रेंड्स देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ किस तरह से हम मॉनिटर कर सकते हैं या उसमें किस किस्म के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, तो द थिंग विच आई हैव जस्ट सेड डज नॉट मीन दैट आपका जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो ओवर टाइम डिक्लाइन कर गया है. ऐसा नहीं है. जब हम ये देख रहे हैं कि आपका जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल जो भी आपने आउटपुट को प्रोड्यूस किया है, यानी कि टोटल आपका जो जीएनआई है किसी भी कंट्री का, उसमें अगर वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी आज से कई साल पहले, तो हम देखते हैं कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ऑल्दो वॉल्यूम ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट में गो अप, वो तो ऊपर जा रहा है, बट एज लॉन्ग एज द प्रोपोर्शन या परसेंटेज जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की आउटपुट टोटल आउटपुट के क्या का हिस्सा बना रही है, वो आपको देखने को मिलेगा कि वो ग्रेजुअली स्क्वीज होता चला जा रहा है. सो इफ यू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द आउटपुट विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड या जीएनआई या जीडीपी ऑफ पाकिस्तान ले आप 1947 से लेके अभी तक का, तो आपको फिर यहाँ भी यही वाली ट्रेंड देखने को मिलेगी कि आप देखेंगे कि द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर in Pakistan, that is also gradually going down starting from 1947 until now. And another important thing which we observe is that the overall percentage contribution of the output that we get from the agriculture sector in the total output, that proportion is also gradually declining. So these are the two trends which we observe globally. If we take into account these two important variables, and the same kind of a pattern or trend is observed even in the context of Pakistan. So in addition to these two things, we see certain idiosyncrasies also. Again, इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी दुनिया में exactly यही pattern हम नहीं observe करते. There are certain important aspects also that need to be highlighted कि हम अगर ये pattern नहीं follow करते तो फिर there are few countries जो कि आपको all together एक different तरह की pattern को दिखाती हैं. So उसमें the thing which I am going to discuss with you, अभी इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर एक फिगर देखने को मिल रही होगी और ये फिगर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रही है बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द रियल लाइफ डेटा. और ये रियल लाइफ डेटा लिया गया है दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ को अकाउंट फॉर किया गया है इसमें. और ओवरऑल आपको जो एक ब्लू लाइन देखने को मिल रही है और एक ब्लैक लाइन देखने को मिल रही है, दोनों नेगेटिवली स्लोपिंग है और ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस देम विद यू इन डिटेल, ये हमें क्या बता रहे हैं. बट एट द सेम टाइम आपको कुछ तीन लाइंस इन एडिशन टू दैट दीज टू लाइंस मिल रहे हैं ब्लैक कलर के, जो कि आपको जिगजैग वाली पैटर्न दिखा रही हैं. सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फिगर, वी सी दैट वी हैव टेकन जीडीपी पर कैपिटा इन कांस्टेंट $2000 अलोंग द एक्स एक्सिस. और अगर आप देखें इस डायग्राम में तो यहाँ आपको एक्स एक्सिस के ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ देखने को मिल रहा है लॉग स्केल. इसका मतलब कि चूंकि हम
दुनिया के बहुत से कंट्रीज का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, इसलिए वी नो दैट कुछ कंट्रीज के अंदर इनकम बहुत कम होती है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड हमने लगाया दैट इज 2000 के कांस्टेंट यूएस डॉलर, और वी नो कि इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन द लो इनकम कैटेगरी इन पर्टिकुलर जो जीडीपी है या जीएनआई है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू जो डेवलप्ड नेशंस के अंदर आपको जीडीपी देखने को मिले। तो चूंकि वेरिएशन या स्कैटरनेस या डिस्पर्शन डेटा में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जो इनकम की वैल्यूज देख रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो लॉग स्केल पे लिए गए हैं। सो हम जब आप डायग्राम बनाते हैं और अगर आपको देखने को मिले कि जो आपके पास डेटा है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको लॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको उठा के एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस पे लेते हैं ताकि वेरिएशन को कम किया जा सके। सो द सेम थिंग हैज़ बीन डन। सो आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट टू यू कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लॉग क्यों लिया गया है। Well, so along the vertical axis, the share of labor and GDP in agriculture sector has been accounted for, and you can see that if you look at the blue line, ये आपको बता रही है share of labor in agriculture sector spanning 1990 to 2005 and these are the average values। और आपको देखने को मिल रहा है इन 15 सालों के अंदर आप if you look at the blue line alone, आप इस डायग्राम में सिर्फ अगर ब्लू लाइन को देखें तो पिछले 15 सालों के अंदर इस डेटा के अकॉर्डिंगली आपको एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रही है विच इंडिकेट्स के जो लेबर एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन करी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द ब्लैक लाइन विच इज गिवन इन द बॉटम, और ये आपको बता रही है शेयर ऑफ जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर अगेन स्पैनिंग 1990 टू 2005, और ये भी दुनिया के एवरेज वैल्यूज लिए गए हैं इस लाइन को प्लॉट करने के वास्ते। सो अगेन ये बता रही है कि जो ओवरऑल आउटपुट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 1990 से लेके 2005 तक काफ़ी सिग्निफिकेंटली और शार्पली डिक्लाइन कर गया है। और इसके अलावा आपको जो छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स मिल रही हैं देखने को, दे स्पेसिफाई द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज दैट हैव दोज व्हिच हैव बीन accounted for in order to construct this diagram। So in addition आपको एक और लाइन देखने को मिलेगा that is उसके साथ ही में लिखा हुआ है चाइना। सो ये आपको चाइना के पैटर्न को बता रही है, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा द डेटा इज कवर्ड फ्रॉम 1961 टू 2003, और ये एक आपको जो पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, जो लाइन आपको चाइना को के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इंडिकेट्स दैट एज लॉन्ग एज द contribution of agriculture in the total output is concerned, तो वो आपको उतना ज़्यादा sharply decline होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है चाइना में। There is a fall in the overall share of agriculture sector in the total GDP, but we don't see that this fall is in line with the fall which we observe for the global data set। So जो आप अगर slope देखेंगे चाइना के डेटा की लाइन की, और जो आपको ग्लोबल ब्लैक लाइन देखने को मिल रहा है उसका स्लोप ज़्यादा है और चाइना अलोन की स्लोप कंपैरेटिवली स्मॉल है। सो दिस इंडिकेट्स के जो आपको रिडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन का इन टोटल जीडीपी, दैट इज नॉट दैट बिग व्हाट वी ऑब्जर्व फॉर द कंट्रीज अदर देन चाइना। सो ये चीज़ आपको स्लोप के फ़र्क से देखने को मिल रही है। इन एडिशन टू दिस आपको दो जिगजैग पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वन जिगजैग पैटर्न इज फॉर नाइजीरिया, जो कि समवेयर इन द मिडल ऑफ द फिगर आपको देखने को मिलेगी, और नाइजीरिया का डेटा लेके आपको ये जिगजैग पैटर्न देखने को मिल रहा है विच इंडिकेट्स कि आपकी जो ओवरऑल इनकम है वो इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं करी, लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का इन द टोटल इनकम दैट हैज सिग्निफिकेंटली गॉन डाउन, और हमें वहाँ एक पॉजिटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्रेजुअल डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन नहीं देखने को मिल रही जैसे हमने वर्ल्ड का डेटा लिया या चाइना के लिए हमने पैटर्न देखी है। यहाँ आपको इस तरह की पैटर्न देखने को मिल रही है जो कि बता रही है कि बहुत सिग्निफिकेंटली जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर
sector ka in the total GDP, that has gone down, but we don't observe a similar increase in the overall GDP of that country. So हमने जब पहले दोनों trends देखे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि GDP income भी आपका grow कर रहा था, and at the same time जो contribution है labor force का in the agriculture sector वो और contribution of the agriculture sector in the overall GDP वो दोनों के दोनों fall कर रहे थे gradually with time, जैसे जैसे आपकी income increase करती है. But as long as this particular situation is concerned in Nigeria, we observe that although the income has not significantly gone up, जबकि जो contribution है of agricultural sector in the overall income that has sharply declined. इसी किस्म की pattern आपको देखने को मिलेगी towards the right hand side of this figure. And that pattern has been drawn by taking into account the data for Brazil. और वहाँ भी again you can see that अगर आप x-axis के along Brazil के data की movement देखेंगे तो that is not that big. लेकिन अगर आप vertical axis के ऊपर Brazil के data का movement देखेंगे तो वहाँ आपको काफी sharp decline देखने को मिलता है. So we can interpret this pattern as indicating that in Brazil, although we do not see a very rapid increase in the overall income level, but we see that the contribution made by the agriculture sector in the total GDP has sharply declined, and that is why we do not see a negatively sloping straight line pattern for Brazil. We see a zigzag kind of a thing, that it is sharply declining, although the variation along the x-axis is not that big. So this indicates that we can generalize that with the passage of time, with the development of an economy, हम ये चीज़ को observe करते हैं कि हमारा जो overall income है उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो agriculture sector का contribution है वो fall करना शुरू कर देता है, मगर overall जो उसकी volume है वो fall नहीं करती, वो increase करती है. Similarly, the people who are associated with the agriculture sector also start declining as the income of an economy grows. So this particular phenomenon is termed as the agricultural transformation. So इस particular process को हम technical terminology के अंदर agricultural transformation बोलते हैं. And we see that although there are certain exceptions, but generally we observe that in the world we see that agricultural transformation is taking place. So in addition to this, we also observe that it's not just the people who are linked up with the agriculture sector के उनका जो proportion है या उनका number decline कर रहा है, और साथ ही में हम ये देख रहे हैं कि although the volume of the agricultural output is rising with time, or as the country is progressing and the total proportion of the agriculture sector is declining as the country progresses, we also observe that globally we see that the overall yield or the per acre yield of different types of staple foods, cash crops is also increasing, and that may be because of the extraordinary focus that is being now paid on the development of this particular area sector, which is the agricultural sector. Plus अब ये भी देखते हैं कि हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं जिनकी मदद से इस वक्त के गुजरने के साथ साथ हम बहुत सारे एडवांसमेंट्स की वजह से आप अभी जो अपना आउटपुट है एक एकड़ से जितना आप यील्ड पहले लेते थे आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले, अभी बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आप पर एकड़ यील्ड को मेनी टाइम्स इंक्रीज कर चुके हैं. एंड इन ऑर्डर टू सपोर्ट व्हाट आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू इज आई वांट यू टू लुक एट दिस फिगर व्हिच यू विल बी सीइंग राइट नाउ. और इस फिगर में आपको सीरियल यील्ड्स बाय वर्ल्ड रीजन बताए गए हैं. द डेटा दैट हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज फ्रॉम 1960 टू 2005, और यहाँ डिफरेंट रीजन्स के अंदर सीरियल के यील्ड्स को अकाउंट फॉर किया गया है. एंड एज यू कैन सी along the x-axis time period has been taken starting from 1960 until 2005, और vertical axis के ऊपर आपको yield which is in terms of tons per hectare दी गई है. So if you look at the trends, except sub-Saharan Africa, आपको सारे के सारे regions के लिए जो cereal
का यील्ड है वो आपको काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. इट कुड बी बिकॉज ऑफ टू मच एम्फेसिस अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर की गवर्नमेंट जो है वो फिर फार्मर्स को सब्सिडी देती है और बोलती है कि आप पेस्टिसाइड्स वगैरह को लो रेट के ऊपर हमारे से बाय कर सकते हैं, या ख़ास किस्म के सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि लैब्स में टेस्ट किए जाते हैं, जो कि नेचुरल कैलामिटी टेस्टेड होते हैं, या कोई ड्राउट आ जाए या कोई भी पानी में प्रॉब्लम है या लाइट बहुत ज़्यादा है उससे वो रेजिस्टेंट वाली वर्जन्स निकालते हैं उनका सीड्स का. सो दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, एंड देन द गवर्नमेंट ऑल्सो फोकसेस अपॉन प्रोवाइडिंग द नो हाउ, ट्यूबवेल्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन किया. सो इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से और ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट, इनकी वजह से वी सी दैट देयर इज अ पॉजिटिव improvement in terms of the acre per yield of cereals, and this is common in all the regions except sub-Saharan Africa. We see some sort of improvement in sub-Saharan Africa's per acre yield of cereals as well, but as long as the improvement we observe for sub-Saharan Africa comparatively is not that big जो कि हमें बाकी regions में देखने को मिलती है. Particularly if you look at the line which represents the improvement in the per acre yield in the developed nations, तो वो आपको सबसे ज़्यादा significantly rise होती हुई देखने को मिलेगी. And that is again that indicates कि if you are technologically advanced, अगर आप इस particular aspect के ऊपर emphasize कर रहे हैं कि हमें हमारा जो output है या productivity है of the agricultural output उसको enhance करना चाहिए, तो that can actually be done, and this particular figure supports this stance that अगर हम चाहें कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस हैज बीन डन, एंड दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय लुकिंग एट these lines which are indicating a positive relationship between this application of improved varieties of seeds and greater emphasis on the development of agricultural output over time, and we see that per acre yield has also gone up of the cereals. So moving further, at the same time we see that although we see some sort of progress, but at the same time we observe some sort of bad aspects also which are associated, linked up with the people who are situated primarily in those areas where agricultural activities are being carried out in majority. So अगर हम rural area के ऊपर देखें ख़ास तौर पे, या वो सारे के सारे concentrated areas को देखें जहाँ agricultural activities ही के ऊपर mainly focus होता है as a source of earning या as a source of food, तो हमें वहाँ एक dominating feature देखने को मिलती है, and that is malnutrition and problems like hunger and starvation and things like that. And for this I would like to take the example of Africa कि वहाँ बहुत ज़्यादा concentrated है ये issues कि वहाँ पे because of the low productivity agricultural output का बहुत less output का level होता है, और जिसकी वजह से हमें वहाँ malnourishment ज़्यादा देखने को मिलती है. Particularly if we look at the people who are living in very low income areas in Africa और Sub-Saharan Africa पूरे का पूरे में अगर आप देखें तो वो areas जहाँ predominantly जो कि बहुत लो इनकम कैटेगरी में फॉल करने वाले लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वहाँ आपको जो रीज़न उनके लो इनकम के पीछे आपको देखने को मिलेगा, दैट वुड बी लो आउटपुट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन दोज एरियाज इन पर्टिकुलर, और बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैल नरिश्ड पीपल. सो और मैल नरिशमेंट जो है वो एडल्ट में भी है, मगर उन इलाकों के चिल्ड्रन के अंदर आपको मैल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. सो इट इज़ देयरफॉर रिकमेंडेड कि ऑल्दो वी ऑब्जर्व दैट देयर वर अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु फॉलोड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s इन पर्टिकुलर, जैसे पाकिस्तान में भी हमने देखा कि 1960s में बहुत रिगरसली ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो किया गया था, और गवर्नमेंट स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स वर कैरिड आउट टू रेवोल्यूशन
homogenize the agricultural sector in Pakistan. Similarly, दुनिया में काफ़ी सारे areas में जहाँ agricultural sector predominantly economy को contribute कर रहा था, वहाँ काफ़ी इस तरह के actions लिए गए, policies बनाए गए जिनसे agricultural sector को boost मिला. A same kind of green revolution policy mix is recommended for the overall development of people who are situated primarily in sub-Saharan Africa. खास तौर पे वो वाले एरिया जहां आपको malnourishment बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जहां agricultural output बहुत लो है और वहां जो heavy pockets हैं, लोगों का concentration population के terms में बहुत ज़्यादा है, मगर जो आपका agricultural output है या productivity of agriculture sector है वो काफ़ी लो है. So again it is recommended therefore कि इन एरियाज में खास तौर पे जहां आपको malnourishment या agricultural productivity लो देखने को मिलती है, वहां आप बहुत rigorously अगर आप green revolution को दोबारा से follow करें तो things can be improved considerably. In addition to this, we also observe in the past that there have been instances where the food prices went up sharply. So ऐसे instances में हमें अगर हम food prices के movements को observe करें तो ग्लोबली हमें 2007-2008 में देखने को मिलता है कि फूड के प्राइसेस जो हैं वो बहुत शार्पली इंक्रीज करे थे और सिमिलरली इन 2011 आपको अगैन मिलेगा कि फूड प्राइसेस बहुत तेजी से इंक्रीज कर गए थे और अगैन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट फॉल्स बैक वेरी हेविली ऑन पीपल पर्टिकुलरली हु आर पुअर के अगर आप कोई लग्जरीज पे स्पेंड नहीं भी करें, फूड तो आपने खाना ही है, फूड तो आपने कंज्यूम करना ही है, नो मैटर आप पुअर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या आप हाई इनकम कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी वी हैव टू टेक. और अगर उसमें इस तरह के प्राइस फ्लक्चुएशंस आते हैं या स्पाइक्स आपको देखने को मिलते हैं प्राइसेस के अंदर, फूड प्राइसेस के अंदर, तो दैट turn out to be really harmful for the people who fall in the low income categories. और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी अकरेंस को आप हटा सकते हैं या इसके सिवियरिटी को आप कम कर सकते हैं कि इतने बड़े स्पाइक्स नहीं मिले आपको फूड प्राइसेस के अंदर अगर आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉपर्ली डेवलप करते हैं, अपनी जो डिमांड है उसको प्रॉपर्ली सेस करते हैं, उसको अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चरल आउटपुट को का सप्लाई को मैनेज करते हैं. और अगैन दिस कैन मेनली बी डन इफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज एनहांस्ड, क्योंकि यू need more money to be more people to be employed in different other sectors also, and the government and the economy can develop in a better way कि आपके सारे के सारे सेक्टर्स नाइसली फ्लरिश कर रहे हैं. जैसे कि पाकिस्तान में आप देखें कि हम इकोनॉमी को 3 मेजर फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या और एग्रीकल्चर सेक्टर. सो अगर तीनों सेक्टर्स में आपको बाकायदगी से काफ़ी हाई लेवल ऑफ आउटपुट का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो नेचुरली दैट विल लीड टू अ हायर टोटल नेशनल आउटपुट ऑफ पाकिस्तान. सो अगर आप एक सेक्टर अच्छा वाला परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और दूसरी सेक्टर को आप ग्रो करना चाहेंगे तो बोथ विल नॉट develop in the long run, because as I just mentioned in the beginning that we observe complementarity between industrial sector and the agricultural sector. So if one sector grows, that facilitates the growth of the other sector. So I was just mentioning that if the idea this has been observed in the past that there were very sharp price hikes in the food prices. So this can be again monitored and managed in a better way. अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और एग्रीकल्चर आउटपुट को मैनेज करते हैं, हाई लेके जाते हैं, तो वहाँ से आपको ये हमेशा जब भी आपको प्राइस हाइक मिलेगी दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज इन द सप्लाई. सो आप अगर सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन करा हुआ है आपने अपने प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने से, तो आपके ये जो इस तरह के फ्लक्चुएशंस हैं प्राइसेस के अंदर वो आप काफ़ी हद तक उनके ऊपर काबू पा सकते हैं. और दिस कैन ओनली बी डन बाय लुकिंग एट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. और इसके साथ ही में आपको एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि वो जो ढेर सारी लेबर फोर्स आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ लिंक्ड अप की भी होती है, अगर आप प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल दैट आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि आप उनको
को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू सम अदर सेक्टर्स, और वहाँ वो वाले सेक्टर्स भी साथ ही में आपके डेवलप कर सकते हैं. सो in addition to this, we also observe that there are certain market failures sometimes, and that also contribute significantly towards enhancement of the poverty. और अगर आप इन market failures को मैंने जैसे भी आपको जिक्र किया supply को properly manage कर लेते हैं तो आप market failures को to a greater extent control कर सकते हैं. And if the market fails, particularly अगर आप food items की बात करें, उनकी market में कोई disaster आ जाती है या कोई rigidity आ जाती है कि आपको shortage है, जैसे अभी कभी पाकिस्तान में भी होता है कि टमाटो का क्रॉप में कोई मसला हो गया है या शुगर कैन में इशू हो गई है, तो फिर आपको शुगर इंपोर्ट करनी पड़ती है. मगर उतने एरिया अरसे में जब तक आपका वो इम्पोर्टेड मटेरियल जो है, इम्पोर्टेड माल जो है वो आपके घर तक नहीं पहुंचता है, तब यहाँ एक मेस क्रिएट हो जाता है. सो दैट लीड टू फर्दर वर्सनिंग द सिचुएशन. और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उन लोगों का है जो कि बहुत लो इनकम कैटेगरी में बैठे होते हैं. सो इफ़ यू आर planning and spending some money on the alleviation of poverty, for example, और इस किस्म की market failures हो जाते हैं तो that can worsen the situation. वो poverty alleviation के जो process है उसको reverse कर देती है. So again आपकी जो अगर agriculture sector proper वाली काम कर रही है तो then it would be like a positive thing कि आपको इस किस्म के जो disastrous situations हैं वो उनका सामना नहीं करना पड़ता. The next thing which I'm going to discuss with you in detail is the role of the government. So government agriculture sector के development के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है और कर सकती है. So उसमें सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is the externalities that are linked up with the environment. So we know that अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को साइड पे रख के आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्लरिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट तो ये है कि आप जैसे जैसे आपके फैक्ट्रीज और प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तादाद बढ़ेगी तो नेचुरली आप जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो डेडिकेटेड एरिया है उसको वो कम करना पड़ेगा आपको. सो इससे क्या सबसे बड़ा नुकसान की जो बात हमें नज़र आती है which turns out to be very evident and prominent, and that is that enhancement or expansion in the industrial sector contributes significantly in reducing the environment का जो लेवल है उसको वो डिग्रेड करना शुरू कर देता है. सो अगर गवर्नमेंट नाइसली वॉच करी है दैट सिंस वी आर एक्सपैंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड दैट विल डेफिनेटली लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इशूज. सो जो भी आपका एनवायरमेंट है उसको वो डिग्रेड करने जा रही है बाय एडिंग पोल्यूशन इनटू द एयर या वाटर में पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं, कोई केमिकल्स जा रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज पैदा हो सकते हैं. सो अगैन गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है वेदर टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर और टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दे नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट that they should not add significantly towards the degradation of the environment and environment को preservation या conservation को account for करना चाहिए. So अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से गवर्नमेंट का रोल देखेंगे तो उसमें हमें अगैन ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को इस तरह से एजुकेट कर सकती है, फार्मर्स को या पीपल हु आर लिंक्ड अप विद एग्रीकल्चरल सेक्टर, सो दैट दे शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल द इश्यूज दैट आर एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, कि वो उस एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहे हों अपने कोई भी एक्टिविटीज़ के साथ में. जैसे for example sometimes they go for like cutting down the trees, so that can contribute negatively in ruining the environmental aspect or environmental जो आपका जो setup है उसको वो ruin कर सकती है. So इस तरह की deforestation soil erosion को भी lead करती है, या आप कोई ऐसे के chemicals इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके soil को ख़राब कर रही है तो that
again is something which is not a recommended idea. So all these strategies are there with the government जो कि implement करें अगर nicely by considering कि हमें environmental issues या environmental externalities को account for करना है. So by environmental externalities we see that कोई भी ऐसा काम जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में आप कोई भी इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज हो रही है, सो दैट वुड बी अ नेगेटिव एनवायरमेंटल एक्सटर्नैलिटी. सो अगेन गवर्नमेंट हैज़ टू वॉच all the different types of processes that are carried out in terms of the agricultural process or in terms of some industrial process जो कि आपके environment को negatively affect ना करे हों, कोई भी इस तरह के externalities ना हो. So these kinds of policies are to be made, and these aspects are to be taken care of by the government in particular. Another important domain जहाँ government has to play a very significant role is the agricultural research and extension services. So we observe that जो भी farmer है वो तो जाके बैठ के खुद research नहीं करेगा कि मुझे कोई hybrid varieties निकालने चाहिए जो कि drought resistant हों, अगर बारिश नहीं होती तभी भी seed जो है वो grow करे और मुझे अच्छा वाला क्रॉप मिल जाए, या जो आपको आप फसल जो भी काश्त करने जा रहे हैं उसका क्वालिटी जो है वो बहुत बुरा नहीं होना चाहिए क्योंकि बारिश नहीं हुई थी या क्योंकि बादल रहे थे या बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई इस वजह से हमारी क्रॉप ख़राब हो गई. तो इस तरह के जो एस्पेक्ट से रेजिस्टेंट सीड्स होती हैं फॉर एग्जांपल वो बनाना इंडिविजुअल फार्मर का काम नहीं है. अगैन दिस इज़ द एरिया वेयर गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फंडिंग जो कि इस तरह की रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकती है और प्रमोट करती है. जैसे पाकिस्तान में आपको ऐसे कि बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फंडेड हैं. और फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू कोट द एग्जांपल ऑफ अयूब रिसर्च विच इज़ सिचुएटेड इन फैसलाबाद, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद. ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका काम है कि ये आपको डिफरेंट तरह की वेराइटी को, डिफरेंट तरह के ब्रीड्स को ये एक्सपेरिमेंटेशन करके आपको मार्केट करते हैं और वो कमर्शलाइजेशन होती है उसकी. सो the loads and loads of money which is spent upon doing research in order to come up with these kinds of varieties of flowers, fruits, plants, crops, etc. They add to increase in the productivity of the overall agricultural output. So ये सारे का सारा जो contribution है ये government का है. So again, if you look at the requirements of the food by the people and if you look at the things that are executed by the government in order to do all these kinds of research activities to come up with this so many things जो भी मैंने आपको mention करे थे, तो again government has to put a lot of effort, spend a lot of money ताकि इस aspect को वो important consider करके एक significant role play करे. और जो भी वी नो कि हर इलाके के जो नेचुरल सेटअप है उसका जो क्लाइमेट है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है. सो उसके अकॉर्डिंगली आपको वेराइटीज़ बना के दें, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएं कि किस तरह से किस टाइम पे मुनासिब है. फार्मर्स को बताया जाए कि यहाँ अभी फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, अभी पेस्टिसाइड्स का टाइम हो गया, अभी पानी लगाने का टाइम है, एट्सेट्रा. सो दिस इज़ ऑल द एरिया वेयर गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, एंड इफ the government does, then that would certainly add to the overall significant increase in the productivity of the agricultural sector and the overall output of the agricultural sector. So in addition to that, government can emphasize on telling the people that they can go for these economies of scale in marketing, कि अगर आप एक certain level of output of agricultural goods या agricultural output को ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर जाके मार्केट करते हैं, मार्केट में जाके बेचते हैं, तो वहाँ आपको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं और दैट कैन आल्सो हेल्प यू इन कटिंग डाउन द टोटल कॉस्ट. सो दीज काइंड ऑफ एस्टिमेशंस, कैलकुलेशंस, इंफॉर्मेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट कैन, इफ इट डज nicely all these things, then it can play a very significant role in overall enhancing the output level of the agriculture sector in an economy. In addition to that, हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट लें आप,
मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का या नॉन मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का एग्रीकल्चरल सेक्टर की आउटपुट लें तो वहाँ इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज होते हैं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब है कि अगर हम एक सिचुएशन को लें कि वहाँ एक सेलर है और एक बायर है, तो the information about a certain product with the seller is not the same which is like as compared to the information which is there about that product with the buyer. So अगर आप कोई चीज़ को बेचने जा रहे हैं और आप अपनी कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है अपने प्रोडक्ट का that would be more as compared to the information about your product that is there with the buyer. तो अगर इन्फॉर्मेशन दोनों सेम लेवल की नहीं है तो हम बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज एसिमेट्रिक. सो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से जो कंज्यूमर है या बायर है वो रिलक्टेंट होता है और आपको हाई लेवल ऑफ प्राइस नहीं दे सकता क्योंकि उसको पता नहीं है कि आप जो भी उसको चीज़ें बेचने जा रहे हैं उसके क्या एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो इन ऑर्डर टू बी इस फियर से कि वो रिग ना हो जाए या वो उसको ज़्यादा प्राइस ना चार्ज करें और एक्चुअल जो वैल्यू है ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट दैट गुड. तो इस वाले सिचुएशन में भी गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग द एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन by telling the consumers that see we endorse this seller. या जैसे हमने देखा पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है गंदम और फिर वो खुद बेचती है. सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल रिड्यूस द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, द एसिमेट्रीज इन द इंफॉर्मेशन. अगैन मैंने बोला जैसे आप कोई अपना लोगो लगा सकते हैं या लाइसेंस इशू कर सकते हैं तो उससे भी जो कंज्यूमर है वो कंफर्टेबल होगा एंड देन ही विल बी विलिंग टू पे अ रिलेटिवली हायर प्राइस विच यू कैन गेट अदरवाइज. तो बिकॉज ऑफ दिस information asymmetric aspect. So in addition to that, government can provide the institutions and the infrastructure that can facilitate the overall development of the agriculture sector. फिर वो देख सकती है again सर्वेस कंडक्ट करके कि कहाँ पावर्टी के पॉकेट लोग पावर्टी स्ट्रक के जो कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं वो कहाँ हैं, कहाँ ऐसे पॉकेट्स बने हुए हैं हमारे मुल्क में जिधर बहुत ज़्यादा गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं. तो आप उनको इस किस्म के इंसेंटिव्स जाके उस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के इंसेंटिव्स दे सकते हैं जो कि उनके ओवरऑल इकोनॉमिक सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सी दैट initially we discussed the significance of the agricultural sector's output in expediting the process of development in an economy. फिर हमने डिस्कस किया कि जो अभी तक प्रोग्रेस क्या अचीव की गई है उसमें किस तरह के डिफरेंट ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं. फिर हम इन द एंड वी डिस्कस कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट एरियाज में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है बहुत सिग्निफिकेंटली in order to uplift the productivity level of agricultural output, in order to uplift the overall output level of the agricultural sector, and at the same time it can also work in reducing the poverty struck people के उनके जो overall सूरत हाल है, economic position है, उनकी income है उसको वो बढ़ा सकती है by playing in different areas. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो उनको किसी किस्म के प्रोविजंस दे सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेके आने में, चीज़ें ईजाद करने में, सीड्स को अच्छा वाला इम्प्रूव करने के लिए लोगों को रिसर्च एक्टिविटी में प्रमोट कर सकती है. उनको पैसे दे के आप इस किस्म के वर्जन्स को बना सकते हैं वेराइटीज़ को जो कि आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस से बहुत ज़्यादा सूट करते हैं. सो टुगेदर वी ऑब्जर्व दैट वी कैन नॉट अचीव अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट developing the agriculture sector at the same time, because it does not only provide employment opportunities, it also provides us with something which is extremely important for all of us, for each of us rather, and that is the food. So हम इसकी significance को overlook नहीं कर सकते, and that is something which is an extremely important aspect or sector of an economy.